If you have a vision of making a difference, there is nothing that can stop you. Meandering through ups and downs, this man was persistent to make difference for the aspired students. He created this massive platform with a team of 1,000 plus for the students to connect with the right online university for a better career. सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक एक्सपर्ट को लेकर आई हूँ इसी फील्ड में, और ये आपके ना सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, आपकी सारी क्वेरीज को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ जिनके पास 25 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन फील्ड। तो आइए मिलते हैं मयंक सर से। ही इज द CEO ऑफ ब्लैकबोर्ड एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड ऑल्सो कॉलेज विद्या। वेलकम सर। थैंक यू। हम लोग बहुत खुश हैं कि आप इस चैनल पे आए और आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि आई थिंक आप इनके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। I'm equally excited, Pooja, and I assure you and my all students Yes, that sir. I will try to answer in my best of the capacity. सो Please. स्टूडेंट्स, आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो सर, मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि Yeah, हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब आपको किसने इंस्पायर किया, क्या चीज़ आपके मन में आई? All right. So let me be very honest in reply to this question that my own challenges that I faced after my 10 plus 2. The struggle that I personally seen that the questions like what to do, from where to do, and I really had not found any good consultants, counselors. बहुत सारे लोगों का ये समझना है ना कि जब से ये कोविड सिचुएशन आई 2019 से, Yeah. तब से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन तभी से राइज हुई, तब उससे पहले से नहीं थी। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये कैसे इतना इम्पैक्ट में आया, और आपको मतलब क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? हाँ, इनफैक्ट पूजा, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन आई वुड से ये दोनों अलग चीजें हैं। जी, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन तो राइट, इट हैज स्टार्टेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई थिंक वे बिफोर 50 years. आई थिंक 1962 में स्टार्ट हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। More than 50 years we would say. And it was primarily meant for the working professionals ओके, who cannot go to a regular colleges while they are also in a job. ओके, But it is my personal experience, and I thought ki distance education was primarily to obtain the qualifications, not for the education. ओके। Learning was missing in the distance education एट दैट टाइम। at that time. Okay, but as time has grown, technology has grown, we have started seeing that universities after 2000 they have started using the technology to deliver the education even to their distance education students. जी, So I would say that was the turning point of the distance education. ओके। And जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन improvisation आता गया, और वो जो मिथ था कि एजुकेशन इज नॉट देयर इन द डिस्टेंस एजुकेशन, वो भी दूर हुआ, बिकॉज डिस्टेंस एजुकेशन में भी यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड गिविंग द एजुकेशन डिलीवरी। बट अब तो नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन जी। which has now become officially UGC has announced it that it will be at par with the regular degrees and distance education degrees. So now it has become a third mode of education. अच्छा, तो अब ये यूजीसी की तरफ से वैलिड है? Yeah, it is absolutely valid now. ओके, Just like prior to online, regular mode and the distance education mode was valid for everything. Now it's a third mode. But the difference between the education delivery between the distance and online is very very huge. I would say कि online education में the rigor, the experience, user experience, जी। I would not say कि बहुत ज़्यादा difference बच्चों को देखने को मिलता है in the regular and in the online education. ओके। Yeah.
तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो मतलब आपकी डिग्री तो बिल्कुल वैलिड होने वाली है। सो सर, मैं जो अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एक क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे पास। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि ये जो डिग्री है ना ऑनलाइन एजुकेशन की या फिर डिस्टेंस एजुकेशन की, वो वैलिड नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ तो तब मेरी ये डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी, या फिर अगर मैं स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें फॉरेन जॉब के लिए जाना है या फिर फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो वो सोचते हैं कि ये वैलिड तो होगी नहीं डिग्री। उसके बाद वो सोचते हैं कि यार यहाँ पैसे डालेंगे, इससे बढ़िया है कि हम रेगुलर एजुकेशन कर ले, सो दैट ये हर जगह वैलिड हो जाए। तो ये मिथ ना स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। Well, Pooja, it's a good question, and I have faced this question many times in my professional career. As you have yourself has mentioned that it's a myth, I would say yes, it's a myth. Degrees obtained through distance education or from the online education mode is absolutely at par in the technical values which you will obtain from the regular mode. So please do not live in the confusion that it will hamper your career. It will not allow you for the further qualifications. It will not provide you the job placements overseas. No, absolutely not. But what I would suggest to you all is that do check the approvals of the distance education or the online education. That university must got a relevant approvals from the apex bodies like UGC, Distance Education Bureau. So that need to be checked upon. Once if you are okay with that approvals, if any university has that approvals, your degree will absolutely going to work in a same manner as the degree obtained through a regular mode. Okay, so मतलब यूनिवर्सिटी के पास ना अप्रूवल्स होने चाहिए, बी इट वो डिस्टेंस एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है या फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बट अगर वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो आपकी डिग्री भी ओवरसीज वैलिड होगी। तो सर अब आप यहाँ ही एक सवाल आ जाता है कि कौन कौन से अप्रूवल्स चाहिए एक यूनिवर्सिटी को वैलिड डिग्री के लिए। All right. Now again it depends on a program to program, Pooja. जी. If we talk about the general programs like management, arts, commerce, science, so there is no third party, there is no any council, specific council for these programs. University needs to have a approval from the University Grant Commission. Okay. UGC, University Grant Commission. To run these programs in a regular mode. Okay. But when it comes to a distance education or online mode, the university must have a approval of the Distance Education Bureau, which is again one of the body under the UGC. But that approval is very, very must. तो मैं आपको बताती हूँ ना कि UGC DEB का अप्रूवल ज़रूरी है फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, तो वही सर आपको अभी बता रहे हैं। और सर देखिए, I have also found that many of the universities still offer their programs in a distance sort of mode. Even they do not have the relevant approval from the Distance Education Bureau. Now, how it will impact the learners? For example, you are a working professional and you wish to pursue a master's in business management, art, science, whatever. And parallelly, you also wanted to stay in the job. So it becomes relevant for you to identify such university who has a distance education approval. Otherwise, what will happen is after 2 years when you will get a degree, so anyone can ask that Pooja, look, the degree that you have pursued is from the regular, but in your resume you have shown that you were working for the College Vidya in these 2 years. Yes. So there is some foul. जी. You got my point? जी. Yeah. तो सर ये तो बात हो गई कि इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड है तो उसके लिए UGC DEB का अप्रूवल चाहिए, आपको नैक एक्रेडिशन चाहिए। बट सर इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन की जॉब्स के लिए ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरेन में जाएंगे तो जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या फिर डिग्री के लिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो सर उसके लिए कौन सा अप्रूवल चाहिए? In fact, these are the only approvals, Pooja, whether for the domestic or for the overseas. But yes, there are few bodies established जिनको हम लोग WES, ICAS के नाम से जानते हैं, कनाडा, US के लिए ये लोग क्वालिफिकेशंस को की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, okay, whether they have obtained through valid universities or not. Okay. So let me clarify this point to my
students, any university which is approved from the University Grant Commission here in India, believe me, the degree awarded by such universities will be acceptable across the globe. तो So, अगर आपकी डिग्री यूजीसी से अप्रूव है तो वो अक्रॉस द ग्लोब आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। Yeah. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे मिल जाता है ना, कुछ एक्स्ट्रा स्टार्स मिल जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, ये WES, NAC एक्रेडिटेशन, ये सब उसका पार्ट प्ले These करता are है। simply accrediting bodies. Okay. हाँ, क्वालिफिकेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, दे आर जस्ट सिंपली अ बॉडीज. बट any university which has become the university, it cannot become the approval without the approval of UGC. Okay? तो मतलब आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपकी डिग्री ना कहीं भी जाके वैलिड होगी। तो ये वाला प्रॉब्लम ना बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, अब आपको ना बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सर अब इसके बाद ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है कि आपने एक नया वेंचर स्टार्ट करा है, दैट इज़ कॉलेज विद्या। Oh yes. हाँ, तो कॉलेज विद्या जिसमें यू कैन सी मैं भी हूँ, तो सर उसके बारे में बताइए कि वो आपने कैसे स्टार्ट करा और क्या थॉट प्रोसेस था आपका उसके पीछे। Okay. See, it is a brainchild venture kind of thing. मैं हमेशा जब मैंने अपना करियर शुरू किया आज से 25 साल पहले, I was encountered with lot of questions that what course I should pursue and from where I should pursue, what will be the fees, what kind of approvals should I need to check of the university. Honestly speaking, Pooja, I was not getting the answers. I was not getting the answers. हाँ सर, जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आपके पास होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे किस में जाना है, क्या करना है। Exactly. So these were the thoughts in my mind, that how can I reach to masses and how can I build something which can help to the masses. So that was the very basic reason we have come up with the College Vidya, wherein students can find the best suitable universities for them, which suits to their pocket, which suits to their learning needs. In addition, we have also started a counseling sessions for our students. Okay, sir. So It is one of the added feature of the College Vidya. Now, for example, if any of the student cannot able to determine just using the website, they can also call to College Vidya and can have a chat, can have a conversation with our career counselors. तो सर ये कॉलेज विद्या इज लाइक कि आप ना सिर्फ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन पे से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपने यहाँ पे वो सारी दिखाई हुई हैं। Right. और स्टूडेंट्स मतलब वो उन्हें किसी दूसरे पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा, अगर वो इस एजुकेशन को लेना चाहते हैं वो यहीं पर आके सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज को लिस्ट आउट कर सकते हैं। Absolutely correct. और सर जैसे आप बोल रहे हैं कि काउंसलिंग देंगे, तो सर काउंसलिंग फेस टू फेस काउंसलिंग भी होगी? आपने कभी प्लान बनाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक होता है कि हम वॉक इन करेंगे, उनके पेरेंट्स को विश्वास नहीं होता है तो वो कहते हैं कि हम आके देखेंगे कि ये सच है कि नहीं है, कहीं कुछ फेक तो नहीं है। Oh yes, Pooja, prior to the pandemic, prior to the corona, we used to call our students to our office. We also have College Vidya points in many of the districts. But after the pandemic, we have come up with the virtual meetings. Instead of face to face, we have come up with the meetings happening on Zoom, Google Meet. I mean, जिसमें भी बच्चे को comfortability हो. And believe me, that worked so well for us. Prior pandemic हम लोग रोज के करीब 100, 125, 150 लोगों को काउंसलिंग देते थे, एंड आफ्टर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी अभी तो करीब 500, 600 बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हमसे रोज काउंसलिंग लेते हैं। ओके, तो मतलब अब ना जैसे कि एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई है सर, अब मैं देखती हूँ इतनी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है, तो ऐसे ही सब कुछ वर्चुअल हो गया है, तो काउंसलिंग भी वर्चुअल हो गई है। ऑब्वियसली ये होना ही था, देखिए, और ट्रस्ट फैक्टर भी बन गया है एक सर इसमें। ट्रस्ट के साथ साथ बहुत कन्वीनियंस है पूजा। पहले हम देखते थे कि पेरेंट्स बहुत दूर दूर से आते थे और हमको बोलते थे भाई कि आपका
रोहतक में क्यों नहीं है कॉलेज विद्या पॉइंट? जी। हाँ, अब तो यहाँ बैठे बैठे विशाखापट्टनम के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं एंड दे एबल टू आइडेंटिफाई द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर देम. सो जस्ट इमेजिन कि हम ऑल ओवर द ग्लोब हम सबको काउंसलिंग दे रहे हैं एक ही पॉइंट पे बैठ के. And the best part with the college Vidya is students that we are absolutely unbiased. We do not promote any specific universities. And the very basic reason is that we do not charge anything from our students. हाँ, सर मतलब जैसे अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो सीधा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से हम सीधा यूनिवर्सिटी रेफर करते हैं. Even we do not charge even a single penny from the student. We do not have even a gateway, payment gateway at our website. Okay. So it is absolutely free. Yeah. Very good, sir. तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं कराया जाएगा, आपको सीधा यूनिवर्सिटी से कनेक्ट किया जाएगा और आपको जो भी पेमेंट करना है वो आपको सीधा यूनिवर्सिटी में करना है. तो सर कॉलेज विद्या के बारे में तो हमने जान लिया, बट अब ना हम सुन रहे हैं कि आपने कोई कंपेयर फीचर निकाला है कॉलेज विद्या का एंड उसमें कुछ सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी भी है, तो सर उसके बारे में भी थोड़ा बताइए. सी कंपेयर फीचर अगेन हमारा बहुत विशफुल फीचर एक है जिसपे हमने बहुत मेहनत करी है. ऑलमोस्ट 3 साल से हमने पहले बहुत डेटा इकट्ठा करना शुरू किया. वी हैव स्टडीड ऑल द यूनिवर्सिटीज अबाउट देयर अप्रूवल्स, अबाउट देयर कोर्सेज, अबाउट देयर लर्निंग मेथोडोलॉजीज, उनका फैकल्टीज का जो पूल है. तो जब हमने बहुत सारा डेटा जब इकट्ठा कर लिया और हमारे पास बहुत डेटाबेस बन गया तो हमको एक लगा कि भाई कि नाउ इट इज द बेस्ट टाइम टू गिव द स्टूडेंट्स ए पावर टू कंपेयर बिटवीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग about the universities, courses, fees, faculty pools, placements, students feedback, students retainership. Well, compare feature. In fact, Pooja, we have seen a very big problem amongst all the students is हमने सक्सेसफुली बच्चों को रेगुलर डिस्टेंस ऑनलाइन के बारे में तो बहुत बताया, बट अभी क्या हुआ पिछले 4-5 साल से दैट number of universities having the distance education approval or the online approval, they have become so big in the numbers. तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम आता था कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, नाउ हाउ शुड वी आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी? सभी बोलते हैं कि हम सब बेस्ट हैं. एंड what I have personally realized and seen amongst the students that they know what they do, what they wish to pursue. क्लैरिटी है उनको कि मुझे MBA सेल्स करना है, फाइनेंस करना है जी. बट व्हेन इट कम्स टू ए यूनिवर्सिटी दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. सो नाउ देयर इज a compare feature at our website. Students are very happy to use it because we give them the power to compare across the number of universities. They can compare now about the university credentials, approvals, fees, placement records, faculty pools, number of students they have passed. So you can now compare anything from the compare feature. मतलब आप इस फीचर में उस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स भी देख सकते हैं. मतलब आप 3 या 4 यूनिवर्सिटीज को एक साथ लेके आप उसे कंपेयर कर लीजिए कॉलेज विद्या के कंपेयर फीचर पे और वहाँ पे आप सारे अप्रूवल्स देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन से हैं, उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, उसका मोड ऑफ एजुकेशन कैसा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, कितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, रिव्यूज देख लीजिए. तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज पूजा, वंस स्टूडेंट हेल्प हिमसेल्फ, जब वो जीरो डाउन कर ले अपना 1 या 2 यूनिवर्सिटीज पे, देन द बेस्ट इज दैट दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू आवर काउंसलर्स. They can always help them. They can suggest. सर अब स्टूडेंट ने कंपेयर तो कर लिया यूनिवर्सिटीज को, बट उसके बाद भी ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वेदर ये यूनिवर्सिटी सही रहेगी या नहीं रहेगी या कौन सी यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट करें. तो उस पे आपका क्या सजेशन है? We have one more feature after the compare that we will help you in figure out the best university for you. We call it a suggest feature. Suggest university. So how do we identify a good university for the students is that we try to understand their socio-economic background, their learning requirements, their engagement
in their job, in their professional and personal life. Okay. So on the basis of their own information, our expert counselors help them in suggesting the right university. ओके So तो not a आप problem. मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, फिर वो सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी फीचर में उन्हें एक यूनिवर्सिटी उनको प्रेजेंट कर देते हैं कि मतलब ये आपके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट रहेगी. Yes, and it is also artificial intelligence driven, that it will ask students such questions that on the basis of that questions that AI will help system to propose them the right university. ओके सो इट इज एआई पावर्ड ऑल्सो, तो आपको आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन ली जाएगी. Yes. Okay. Yes. आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 10+2 तो कर लिया, मतलब 12th तो मैंने पास कर ली, बट उसके बाद कौन सी एजुकेशन में जाना चाहिए, कौन से मोड ऑफ एजुकेशन में जाना चाहिए एक स्टूडेंट को, All right. वेदर इट इज ऑनलाइन, डिस्टेंस या फिर रेगुलर एजुकेशन में. Okay. See, it is. This is not a simple question to answer, Pooja, because it all depends on their circumstances of the student largely. In fact, when I passed my 10+2, I was encountered with such questions only. Okay, so now I have an answer, and now technology and the information media have now is helping the students a lot. जी. अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और अब बहुत ज्यादा सब कुछ ना डिजिटाइज्ड हो गया है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ ढूंढ सकते हैं. But what I should advise to my students is after 10+2, if they have a opportunity to earn, to win a enrollment in the top 3, 4, 5 universities or colleges of their state or their local area, then they can afford, obviously, so they should pursue their bachelor's degree from the regular mode. Okay. But if they unable to win a seat in the top 3, 4, 5 university or colleges, I would very strongly recommend to all such students to not to go for category B or C colleges or universities. Okay. They will not end up having anything. They will end up wasting their 3 years. Okay, so in this context, I would recommend them to go for the online education. That's the best option with them. In the online education, they can go for a top rated A category universities. I would not name the universities because we claim ourselves as an unbiased portal. But certainly they can go for the category A universities of our country. ओके सो अब ऑनलाइन एजुकेशन में भी बहुत सारी ए कैटेगराइज्ड यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं, तो अगर आप एक जैसे आईआईएम या फिर आईएसबी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आप एजुकेशन नहीं ले पाए, तो इट्स बेटर कि आप टियर 2 या टियर 3 यूनिवर्सिटीज में ना जाके आप ऑनलाइन एजुकेशन लें और उसके साथ आप जॉब भी परस्यू कर लें या फिर आप कुछ और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहें. There are multiple options along with their online degree programs because it is highly flexible in the timings. So they can go for the additional skill development programs in the area of their interest. And see, in the online education, the best part is कि जो best faculties रेगुलर कैंपस में पढ़ा रही है उस सो कॉल्ड ए कैटेगरी यूनिवर्सिटी की, वही यूनिवर्सिटीज इन बच्चों को भी पढ़ा रही है. बिल्कुल. सो जो यूजर एक्सपीरियंस है और जो पैशन रिगर जो फैकल्टीज में वो वही है. तो मतलब जो फैकल्टीज जो रेगुलर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है वही फैकल्टीज आपको ऑनलाइन एजुकेशन में भी दे रही हैं. तो बस एक फर्क ये रह जाता है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं वहाँ पे और रेगुलर एजुकेशन में आपको कॉलेज में जाना पड़ता है. दैट्स इट. सर एक और क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो उनकी जो डिग्री होगी उसमें ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा या फिर डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा अगर वो इस मोड से करते हैं नहीं करते हैं. तो इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं कि उनकी डिग्री में लिखा हुआ आ जाएगा तो उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी या फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा. तो सर इसके बारे में बताइए कि मतलब अगर उनकी डिग्री में ऐसा लिखा हुआ होगा तो उससे उनकी आगे जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा. All right, Pooja. So, okay, Pooja. I would like to answer this question in 2 parts कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या ये आवश्यक है
मोड ऑफ एजुकेशन लिखने का डिग्रीज पे, मार्कशीट्स पे, जी। तो आई विल से यस, it is mandatory for the universities to write the mode of education, whether it is regular, distance or online. Okay. जी And the second part of your question is, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि how does it matters? जी How does it matter? I have already clarified that any qualification obtained through in any of the mode, किसी भी मोड में उसको लिया गया हो, जी it is at par. It is absolutely at par when it comes to a technical value. जी मतलब अगर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अप्रूव्ड है हाँ। तो वो फिर आपकी कोई भी मोड ऑफ एजुकेशन हो उससे कोई अफेक्ट नहीं Absolutely, पड़ेगा, it doesn't matter. तो उनके प्लेसमेंट पे भी No, कोई no, 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 कहीं पर भी नहीं. After bachelor degree, if they wish to pursue masters, after masters, if they wish to go overseas for the placement or for pursuing any further qualifications, they can go. जी It really not matters. ओके अब सही है, यहीं पे एक और चीज़ आती है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि हमारे पास 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कुछ के पास कुछ 40+ ईयर्स के हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ेगा इस डिग्री को लेने से, हमारी मतलब करियर में क्या और नया होने वाला है अगर हम जैसे MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करते हैं या फिर MCA प्रोग्राम करते हैं, हम कोई भी हायर डिग्री करते हैं. Okay. जी Okay. I would say that this could be the best thing one can think of. You know why? Because now the work environment is changing. जी And Pooja, it is not only about obtaining the degrees. One should more focus on the skills, जी on the new skills, because now the jobs, work environments are absolutely, they have changed. तो मैं इतना बोलूँगा कि now if you really wanted to stay in the race, you every time you have to think on your upskilling, जी reskilling. जी So it is not only about getting the degree. It is also about knowledge and skill. जी और एज इज जस्ट अ नंबर. Yeah, age is just a number. तो एज इज जस्ट अ नंबर. आपको अपस्किल होने के लिए कभी भी आप स्टडीज कर सकते हैं. एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एज पे नज़र डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी एज में जाके एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं और उसका आपको केवल फ़ायदा ही होने वाला है. सो थैंक यू सो मच सर. My pleasure. आपने जो इतना अच्छा इनपुट दिया और इतना सारा हमें इंफॉर्मेशन दी अबाउट एजुकेशन, एंड आई रियली विश एंड होप कि हमारे स्टूडेंट्स को अब सारे आंसर मिल चुके होंगे. सो अगर आप अभी भी हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कुछ सजेशन दीजिए. Oh well, okay. So, in a very simple lines, my suggestion to my all students is that learning should not stop. It should never stop. It should go with the life. Knowledge gives you confidence. Confidence gives you growth. And now we are living in an IT era, information technology world. जी वक्त बदल गया है. हमारे टाइम पे हमको लाइब्रेरी और बहुत जगहों पे जाना पड़ता था नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए. नाउ you should all say thank you to technology. जी कि knowledge and information is just away at the fingertips. बस Okay? एक क्लिक करना है. Yeah. So learning should never stop. It should ये हमारे लाइफ के साथ साथ चलते रहने चलते चाहिए. रहना चाहिए. और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हमें भी बदलना चाहिए टाइम के साथ. Oh yes, yes. बहुत बड़ा बदलाव आया कोविड के बाद. जी एंड कोविड के लिए भी मैं सबको बोलता हूँ कि देयर इज नो नीड टू वरी. जस्ट टेक ए प्रिकॉशंस, जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बी सेफ, adhere to कोविड प्रोटोकॉल्स, बट देयर इज नो नीड टू वरी. तो वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एजुकेशन आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि अब एजुकेशन सब आपके एक फिंगर स्टेप पे है. बस आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला. आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है. कोविड की वजह से बाहर जाते वक्त थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना है, एंड दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच सर. इट इज माय प्लेजर पूजा. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही वैल्यूएबल सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स एंड ऐसे ही वैल्यूएबल सेशंस और वीडियोस मिलती रहे. तब तक के लिए थैंक यू.